Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawar. So friends, I welcome you all for the SYBC Chemistry Paper 3, Unit 4, Instrumental Method of Analysis. Okay, so friends, in our last lecture we have discussed about the basic concepts in instrumental methods. So as I explained you, for an instrument there should be three important things. Very first is stimulus. Okay, so stimulus means it is some form of energy which should be given to the system under study, means it is the actual system where you have to provide this stimulus. And then finally there is response. So this response is actually analytical information. So stimulus can be given in the form of electromagnetic, electrical or thermal energy. Then there is your actual system, means analyte, and after that there will be change in its physical or chemical property and it will be recorded in the form of a response. Okay. So then we have discussed that what type of various energies can be provided to the instrument. Okay. So very first one was optical interaction. So optical interaction means it is the interaction of light. Okay. So various instruments based on this technique are photometric titrations or photometry, spectrophotometers and colorimeters. So how they work, that I have explained you in my last lecture. Very important thing for the optical instrument is plane polarized light. So ordinary light will scatter or it will vibrate in all directions. So when it is passed through Nicol prism, then it will have only one plane of vibration and finally it will give you polarized light. So for any optical instrument, polarized light is very important. So you can see here that when you pass ordinary light through polarizer or Nicol prism, it will create plane polarized light, and when that plane polarized light is passed through analyzer, then you will get the actual response from your analyte. Then the second interaction we were discussed about the potentiometry and conductometry. Okay, so in this case you have to give electrochemical responses, and electrochemical responses are responsible for the change in electrochemical properties like potential or conductance of the instrument. So in case of potential, we know that there is change in EMF of the cell. So EMF is actually, it can be EMF of reference cell, then EMF of indicator cell and then EMF of junction. Similarly, the second type based on this category is conductometry. So conductometric analysis is based on the measurement of the electrical conductivity of the solution. Okay. So this electrical conductivity is totally depend upon movement of ion. Okay. So movement of ion means there will be positive ions and negative ions in the solution. So obviously when you pass electricity, what will happen? Positive ion will travel toward negative pole and negative ions will travel toward positive pole. So the mobility of the ion is very essential and its movement is through the solution, okay, under the influence of some provided force, that can be electrical field or concentration gradient. So this way two type of interaction can be observed in electrochemical interaction. The third very important interaction means we are discussing the stimulus, right? So third type of stimulus you can provide to your instrument is thermal interaction. So as the word suggests you, thermal means heat. So you have to heat the solution, you have to supply the energy in the form of heat. Okay. So when a matter is heated, it undergoes certain physical and chemical changes, right? These physical and chemical changes take place over a wide range of temperature. So suppose if you provide only few amount of heat, the temperature is heated to only a certain extent, then there will be only physical change like melting or boiling of the solution. अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाते हो, इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर मोर एंड मोर, देन देयर विल बी केमिकल चेंजेस. ओके, एंड फाइनली वो जो सब्सटेंस है वो जल जाएगा, इट विल बर्न, राइट, अकॉर्डिंग टू इट्स हीट कैपेसिटी.
So these chemical changes such as decomposition or certain type of reaction और also formation of a char, इस तरह की सारी जो changes आती है it is because of various amount of temperature. Okay, so therefore heat is very important type of interaction which can be given to your substance. Okay, so during last some year the method of thermal analysis have been widely accepted in analytical chemistry, and the term thermal analysis indicates the technique in which some physical parameter of the system is determined or recorded as a function of temperature. इसका मीनिंग क्या है कि हम लोग जब कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब हम लोग क्या मेजर करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन आवर सॉल्यूशन, राइट. जैसे आपने लाइट पास किया, जैसे आपने कंडक्टिविटी मेजर की या पोटेंशियल मेजर किया, उसी तरह से अगर आप हीट पास कर रहे हो तो उस सब्सटेंस के केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसे चेंज हो रहा है वर्सेस द चेंज इन टेम्परेचर. तो वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, फंक्शन मीन्स वेरिएबल दैट विल बी टेम्परेचर. ओके, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते हो उस सब्सटेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं दैट यू कैन डिस्कस और दैट यू कैन स्टडी इन थर्मोग्राविमेट्री. Okay, so this type of technique where the temperature act as a function for the physical or chemical property is called as thermogravimetry. Okay, so we will know that thermal interactions are very important and they are also like a fingerprint. तो हर एक कंपाउंड में हर एक टेम्परेचर के साथ जो चेंजेस आते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं, राइट. तो जैसे कि हर एक चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट, फिर बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन पॉइंट और डिकम्पोजिशन, ये सारा अलग अलग टेम्परेचर पे होता है. एंड देयरफॉर दिस टाइप ऑफ चेंजेस वी कैन वेरी इजीली रिकॉर्ड एंड फाइंड आउट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. ओके, सो इस पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मोग्राविमेट्री. Okay, so thermogravimetry is the technique where the weight or mass of the substance is heated at a controlled rate of temperature and the changes are recorded as a function of time or temperature. तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर सब्सटेंस को हीट करना शुरू करेंगे, राइट. और हीट करते करते हम लोग क्या मेजर करेंगे, ऑब्वियसली ये मेजर कैसे कर सकते हैं हम लोग, वी कैन प्लॉट अ ग्राफ, राइट. So on x axis you can plot the change in mass. उस सब्सटेंस के मास में, उसके वेट में क्या चेंज आ रहा है दैट यू कैन राइट ऑन x axis. एंड ऑन y axis यू कैन राइट द चेंज इन टेम्परेचर. तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो वैसे वैसे उस सब्सटेंस में क्या फ़र्क आ रहा है, उसका मास कम हो रहा है, बढ़ रहा है, वो हम लोग मेजर करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज थर्मोग्राविमेट्री. ग्राविमेट्री में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा ही था कि इट इज़ रिगार्डिंग मास, चेंज इन मास, राइट, और प्रेसिपिटेट का वेट. तो वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्राविमेट्री एंड इन थर्मोग्राविमेट्री टेम्परेचर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो वेट इज मेजर वर्सेस टेम्परेचर, that is called as thermogravimetry. Okay, so there are three type of techniques mainly used in thermogravimetry. The very first is called as static thermogravimetry. So in this technique the sample is heated and the weight or change in weight is recorded at constant temperature. Very important thing कि वहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रखते और टाइम के साथ उस सब्सटेंस में क्या चेंज हो रहा है वो मेजर करते हैं. द सेकंड वन इज़ कॉल्ड एज क्वासी स्टैटिक थर्मोग्राविमेट्री. तो ये जो सेकंड टेक्निक है इसमें सैंपल हीट करते एट कांस्टेंट वेट, ओके, और टेम्परेचर इंक्रीज करते. पहले में क्या किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, यहाँ पे क्या कर रहे, वेट कांस्टेंट रख रहे और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं. ओके, सो यू हैव टू सब्सटेंस का जो वेट है उसको कांस्टेंट रखना है. देन द थर्ड टेक्निक in this is called as dynamic thermogravimetry. So in this technique the sample is heated in the environment where temperature is changing and also it is in a linear rate. तो थर्ड टाइप में क्या करते कि टेम्परेचर को वेरी करते in a linear rate. So this type of three interactions we can see in the thermogravimetry or thermal interaction. फिर अब लोग
अभी क्या देखेंगे कि ये जो 3 टाइप के इंटरैक्शंस है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑप्टिकल इंटरैक्शंस। तो ऑप्टिकल इंटरैक्शन किस तरह से सब्सटेंस के साथ होते हैं दैट वी विल डिस्कस। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इज स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, तो स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक interactions, right? So electromagnetic radiation is a form of energy that is transmitted through space with enormous velocity. हम सबको पता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत स्पीड के साथ स्पेस में इंटरेक्शन करती रहती है। ओके, सो स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ द मेथड where you have to measure how much chemical substance absorbs light by measuring the intensity of light as a beam of light passes through the sample. इसकी प्रिंसिपल क्या है? स्पेक्ट्रोमेट्री की प्रिंसिपल क्या है? वी ऑल नो इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइट। तो हम लोग ये मेजर करते हैं कि जब आप किसी सब्सटेंस के अंदर लाइट पास कर रहे हो, बीम ऑफ लाइट है ना, एक पर्टिकुलर लाइट पास करना तो पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव टू पास अ बीम ऑफ लाइट एंड व्हेन इट इज़ पास थ्रू योर सैम्पल व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस टेक प्लेस और वो सब्सटेंस कितना लाइट एब्जॉर्ब करता है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो कितना लाइट एब्जॉर्ब किया ये हम लोग लाइट के इंटेंसिटी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने लाइट उस सब्सटेंस के अंदर पास किया, ओके, इनकमिंग इंटेंसिटी अलग होती है एंड व्हेन इट इज़ पास थ्रू द सब्सटेंस, फिर जो बाहर निकलेगी दैट इंटेंसिटी इज़ डिफरेंट, राइट ना। तो वो इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो इंटेंसिटी है उसमें क्या चेंज हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन बाय दैट केमिकल सब्सटेंस। तो कोई भी सब्सटेंस जब उसके अंदर से लाइट पास करते कुछ अमाउंट उसके अंदर खींच लेता है, ओके, और इट कैन एब्जॉर्ब द लाइट। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. So the basic principle is that each compound absorbs or transmits light over a certain range of wavelength. Very very important कि हर एक सब्सटेंस हर तरीके का लाइट अंदर नहीं ले सकता, ओनली पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइट शुड बी प्रोवाइडेड. ओके, एंड व्हेन दिस टाइप ऑफ लाइट इज प्रोवाइडेड इट हैज़ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, राइट. तो ये वेवलेंथ उसका पर्टिकुलर होना बहुत ज़रूरी है. And when you pass this particular type of wavelength or range of wavelength, the substance will absorb some light. Okay, तो जितना उसने absorb कर लिया वो तो उसके अंदर रह गया और जो बाकी का है वो बाहर फिर से क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा. तो जो लाइट फिर से बाहर आ रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसमिटेड लाइट. ओके, so this is the basic principle that how much amount of light is absorbed by the substance and how much amount of light is transmitted, that is studied in spectrometric method. तो अभी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सब्सटेंस का स्पेक्ट्रोमेट्रिक स्टडी करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ देना ज़रूरी है. सो द वेवलेंथ विच इज़ गिवन इट शुड बी सिलेक्टेड इन अ प्रॉपर रेंज. ओके, तो ये जो सिलेक्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलर वेवलेंथ पास करते दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये अलग अलग टाइप के होते, वी कैन सी इन आवर लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वी हैव टू पास मोनोक्रोमेटिक लाइट. ओके, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. तो हम लोगों को पता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ ऑब्टेन थ्रू योर निकोल्स प्रिज्म. तो उस तरीके से हम लोग क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो भी हम लोग बाद में देखेंगे. So whenever you pass the light or you talk about the light, it is very important that you should know the range of wavelength of light. Okay, तो हम लोगों को पता है कि वैक्यूम अल्ट्रावायलेट लाइट जो है that is in the range of 1 to 180 नैनोमीटर. ओके, फिर जो अल्ट्रावायलेट लाइट है that is in the range of 180 to 400 नैनोमीटर. और फाइनली जो विजिबल लाइट है जो हम लोग देख सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, that range in 400 to 750 nanometer. Okay, so the energy associated with this electromagnetic radiation is about 1 to 20 electron volt. Okay, और वे जब ऐसी लाइट हम लोग सब्सटेंस से पास करते, किसी भी केमिकल सब्सटेंस से हम लोग लाइट पास करते, तब क्या होता है, देर आर सर्टन टाइप ऑफ इंटरैक्शंस. तो ये जो इंटरैक्शंस है वो क्या होते हैं, सो दैट वी कैन सी इन
UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ओके, तो UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या होता है कि दिस इज़ बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट। ऑब्वियसली ये विजिबल लाइट होना चाहिए या अल्ट्रावायलेट लाइट होना चाहिए। एंड व्हेन दिस टाइप ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ केमिकल सब्सटेंस, इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रा। ये स्पेक्ट्रा क्यों जनरेट होता है? क्योंकि जो लाइट उसके अंदर हम लोगों ने पास किया वो बाहर निकलते वक्त, उस सब्सटेंस से बाहर निकलते वक्त सेम नहीं होता, इट इज़ डिफरेंट, एंड देयरफॉर इट क्रिएट अ पर्टिकुलर और डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज़ बेस्ड ऑन दिस इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर इज कॉल्ड एज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस से लाइट पास करोगे, विजिबल लाइट या यूवी विजिबल लाइट, फिर उसके अंदर कुछ इंटरेक्शंस होंगे। ओके, सो व्हाट विल हैपन एक्चुअली कि जब आप लाइट पास करते हो तो देयर विल बी सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग में है दे विल गेट transmitted or they will get excited and they will go to anti bonding sigma orbital। फिर उसके अंदर अगर पाई इलेक्ट्रॉन है, दोज हु हैव डबल बॉन्ड्स, तो सारे सब्सटेंस जिसमें सिंगल बॉन्ड होते उनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके अंदर जैसे ही लाइट पड़ता है दे विल गो टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल। फिर जब पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड है तो दे विल गो टू एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स। और n electrons means those electrons which are not involving in any type of bonding, they are called as n electrons, तो वो भी नॉन बॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ओके, सो दिस वे एज आई सेड द रीजन फॉर विजिबल लाइट फॉल्स इन द रेंज ऑफ 400 to 750 नैनोमीटर। और ये लाइट जब सब्सटेंस से पास होता है तो some amount of light is absorbed and the unabsorbed light goes outside, that is called as transmitted light। okay, so the reflected or the transmitted light constitutes of other wavelength, मतलब जो लाइट हम लोगों ने एक्चुअली पास किया था वो और जो सब्सटेंस से बाहर आ रहा है वो, उन दोनों का रेंज या फिर वेवलेंथ अलग अलग होता है। ओके, एंड देयरफॉर वी कैन सी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। और ये जो स्पेक्ट्रा होता है इट इज़ वेरी वेरी यूनिक। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट यूनिकनेस यू कैन फाइंड आउट द क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द सब्सटेंस। जैसे जिस सब्सटेंस से लाइट पास हुआ उसके बाहर एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा मिलता है, तो हमें पहले से पता होता है कि ये स्पेक्ट्रा कौन सा मेटल या कौन सा कंपाउंड दे रहा है, कौन सा एलिमेंट दे रहा है। सो फ्रॉम दैट वी कैन find out which component or which compound is present, that is called as qualitative analysis। उसी तरह से उस स्पेक्ट्रा की जो रेंज है, ओके, जो पिक हम लोगों को मिलता है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उससे वो सब्सटेंस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ द सब्सटेंस। तो अभी हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखेंगे विच आर यूजफुल इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्री। सो वेरी फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज रेडिएंट पावर। अभी आप लोग कंसिडर करो, जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि स्टिमुलस, एनालाइट एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे एनालाइट आपका कोई सब्सटेंस या सॉल्यूशन होगा, ओके, और स्टिमुलस क्या है आपका ऑप्टिकल इंटरेक्शन, आप उसके अंदर लाइट पास कर रहे हो, और फाइनली देयर विल बी लाइट कमिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो जब हम लोग एनर्जी पास करते हैं तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं? रेडिएंट पावर। द एनर्जी ऑफ द बीम दैट रीचेस टू द गिवन पर्टिकुलर सैंपल एरिया पर सेकंड। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जो एनर्जी आपका जा रहा है वो काउंट करना है आपको एरिया पर सेकंड, देन दैट इज कॉल्ड एज रेडिएंट पावर। सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन जूल मीटर स्क्वायर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, और उसको इंडिकेट हम लोग कैपिटल आई से करते हैं। देन सेकंड इम्पॉर्टेंट टर्म इज कॉल्ड एज ट्रांसमिटेंस। इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द सैंपल। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी। मतलब क्या है कि अगर आपकी
इंसिडेंट रेडिएशन, जो एनर्जी आप डाल रहे हो सब्सटेंस के ऊपर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज इनकमिंग एनर्जी, और वी कैन से इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो आ रही है ना, जो हम लोग पास कर रहे हैं, तो इट इज़ डिनोटेड बाय IO, ओके। और जो इंटेंसिटी, अभी उसने कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी का पास कर दिया, तो जो लाइट पास कर दिया दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। सो द फ्रैक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट रेडिएशन से पास होके निकल रहा है सैंपल से, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसमिटेंस, ओके। देन द थर्ड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इज परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांसमिटेंस विच इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड एज परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांसमिटेंस T है तो इट इज़ एक्सप्रेस इन परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, दैट इज़ 100 इंटू T, ओके। तो ये जो T है दैट इज़ एक्चुअली अ रेशो, वो रेशो क्या है, IT अपॉन I0, ट्रांसमिटेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी। तो उसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्बेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The absorbance is defined as the logarithm or base 10 of reciprocal of transmittance, okay. It is also called as optical density. जो absorbance है उसे हम लोग और क्या कहते हैं, optical density. It is denoted by letter A. तो ये क्या होता है, it is log to the base 10 1 upon T, okay. It is the reciprocal of transmittance. तो transmittance क्या है, कैपिटल T, ओके। तो A क्या हुआ, A इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 1 अपॉन T, ओके। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसमिटेंस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी, ओके। एंड द लास्ट वन इज वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है कि जब हम सब्सटेंस के अंदर लाइट पास करते तो हर एक लाइट के ऊपर वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता, it should be provided with a certain amount of energy with a particular wavelength, है ना। जैसे हर कोई अपना दोस्त नहीं बनता, हमारी वेवलेंथ में ट्यूनिंग आना चाहिए, उसी तरह से सब्सटेंस में वो ट्रांजिशन स्टेट आने के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हम लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। सो द वेवलेंथ एट विच द मॉलिक्यूल possess highest molecular absorptivity is called as wavelength of maximum absorbance. So it is denoted by lambda max, okay. So these are the basic terms involved in this particular thing. Now what is the further thing, what type of instrument that we can have in this optical interaction, that we will study in our next lecture. Till that, you take care and stay safe. Thank you.